السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری عظمت پہ لاکھوں سلام۔ کربلا کی زمین اور امام حسین، اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین حضرات اور ناظرین کرام، الحمدللہ یہ لائیو نشر کیا جا رہا پروگرام من جانب سنی یوتھ ونگ آتنکواد ویرودھی سنگٹھن اور اسی کے دوسرے سالانہ اجلاس کے موقع پر یہ ہماری اور آپ کی پیاری اور محبوب ترین تنظیم سنی یوتھ ونگ آتنکواد ویرودھی سنگٹھن مسلسل آپ کے خدمت میں تیار ہے، اور اس تنظیم کے زیر اہتمام گاہے بگاہے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی آف لائن کام ہوتا ہے، اور آج کے اس ماہواری کے اعتبار سے، اس پرفتن دور کے اعتبار سے، اس کورونا ڈسٹرب کے حساب سے یہ تمام کام آن لائن اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارا راشٹریہ ادھیویشن آج سے شروع ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ راشٹریہ ادھیویشن ہمارا آج کل پرسوں اور اس کے بعد تک چلتا رہے گا، اور اس کے اندر مسلسل الگ الگ اسپیکرز کو آپ کو سننے کو ملیں گے، جس کے اندر اپنا وقت کو اس سنی یوتھ ونگ کے سپرد کر کے اپنی خدمات کو انجام دیں گے۔ آج جو میں اپنے سامنے آپ کے حضرت کے سامنے سنی یوتھ ونگ آتنکواد ویرودھی سنگٹھن کی اس محبت بھرے پلیٹ فارم کے اوپر سے آج میں آپ کے سامنے رسول اعظم علیہ السلام کے مقدس نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور ان کی شہادت کے بارے میں کچھ نقوش آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اسی کے چلتے آج اس پرفتن ماحول کے اندر اور اس خطرناک وقت کے بدلتے ہوئے دور کے اندر مسلمانوں کی بالخصوص پستی کا عالم کیوں ہوا، اور آخر ایسی کون سی وجہ بنی کہ مسلمانان اہل اسلام کو، مسلمانان اہل سنت کو دن بدن پستی کی طرف آنا ہو، دن بدن پستی کی طرف ان کو ڈھکیلا جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ایشیا کا ہو، چاہے وہ کسی اور دیپ کا ہو، یا اور ہم قریب کر دیتے ہیں تو یہ چاہے مسلمان ہندوستان کا ہو یا کسی دوسرے ممالک کے ہو۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ مسلمانان اہل سنت کو اس دنیا کے کچھ رسوخدار اور کچھ سیاستداں لوگ اور کچھ اپر نالج والے لوگ مسلمانوں کو بالخصوص ٹارگیٹ بنا کر کے ان کو پستی میں ڈھکلا جاتا ہے، ان کو
नाकामयाबी की तरफ हमेशा उसकी तरफ ढकेलने की कोशिश की जा रही होती है। आज इसकी वजह क्या? जैसे आज हम और आपने अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से यौम आशूरा को पाया, और दुआ करते हो मालिक मौला हमारे तमाम अहले इस्लाम, अहले वतन, बिलखुसूस मुहिब्बान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उम्र तवील अता फरमाए, और उन्हें हमेशा हमेशा तेरे महबूब के मुकद्दस दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये आशूरा का दिन आप उलमा कराम की तकरीर में सुनते रहते हैं। उलमा कराम मुसलसल इसके बारे में बयान फरमाते रहते हैं, और आज से नहीं बल्कि लगभग पिछले 1350-1400 साल से ये बयान चलते हुए आ रहे हैं। और उसके अंदर जिक्र शहादत इमाम हुसैन को बयान किया जाता है, और जिक्र शहादत इमाम हुसैन के साथ साथ में हमेशा हमेशा एक ऐसा तजर्बा रहा है, हमेशा हमेशा एक ऐसा वक्त रहा है, हमेशा हमेशा एक ऐसा एक वक़ार बाकी रहा है कि मुसलमानों को उनके अहम उमूर की तरफ उभारा जाता है। मुसलमानों को उनके अहम काम और उनके अहम किरदार की तरफ उनको हमेशा हमेशा उलमाए अहले सुन्नत उनको उभारा करते रहते हैं। इसलिए कि शहादत इमाम हुसैन के बारे में हम मुसलसल तकारीर में और बयानत में सुनते रहते हैं, और माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर के 10 मुहर्रमुल हराम तक मुसलसल शहादत ज़िक्र इमाम हुसैन होता है। लेकिन फिर भी इन तमाम के तमाम बातों को सुनने के बाद में अहले इस्लाम और मुसलमान हजरात 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में उसको वापस से भुला देते हैं, और उनको इस चीज की जरा सी भी महसूस नहीं होती कि जो हमने शहादत सुनी है, जो हमने शहादत नामा हमने सुना है, आखिर ये हमें पैगाम का दे रहा होता, आखिर ये हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, आखिर इस शहादतनामा के हिसाब से हमें दर्स क्या हासिल करना होता। आप महसूस कर रहे हैं आज के जमाने के अंदर कि आज इस पुरफितन दौर के अंदर अहले सुन्नत वल जमात के मुकाबिल एक गिरोह है जो जिक्र शहादत इमाम हुसैन के ऊपर मातम के लिए आमादा करता है कि जब इतनी बड़ी हस्ती मुबारक जब शहादत उनकी शहादत हुई तो बिल यकीन हमें गम होना है, बिल यकीन हमारा दिल महजून होता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें गमगीन होना होगा, हमें मातम करना होगा। लेकिन मौजूद सामीन और नाजरीन मैं आपको बता दूं कि मातम करना, ये नोहाखानी करना, यह हमारा और आपका रवैया नहीं हो सकता, यह अहले इस्लाम और अहले ईमान का कारवां नहीं हो सकता। इसलिए कि जो एक फिरका है, जो एक अलग हमसे जमात है, वो तमाम अहले इस्लाम को इसके ऊपर उभार रहे होते हैं कि हमें नोहा करना होगा, हमें मातम करना होगा, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम इस नोहा खानी में, हम इस मातमगिरी में, और हम इस शरई एतबार से हराम कामों में जाने की बदौलत हमें पस्ती में ढकेला जा रहा होता है, हमें दिन ब दिन पस्ती में जाना होता है। दुनिया हमेशा हमें इस बात के ऊपर जो परेशान करती नजर आती है कि आखिर मुसलमान जिस किसी भी कीमत में जहां कहीं कुछ कामयाब नजर आते हैं, उनको किसी न किसी शरई उमूर से भटका करके उनको जो है पस्ती की तरफ लाया जाए, उनको बर्बादी की तरफ लाया जाए, और उन्हें जो है किसी भी कामयाबी को छूने नहीं देना है। जैसे आज हम और आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि आज कहीं पे देखो मुसलमान जो है पस्त के आलम में नजर आता है। ये नोहाखानी और ये मातमगिरी के बारे में जब सवाल करते हैं और उनसे ये सवाल हासिल होते हैं, इतनी बड़ी हस्ती की जब शहादत हुई थी तो हम तुम खुशी क्यों मनाते हैं, हम खुश क्यों रहते हैं, आखिर हमारे दिलों में, आखिर हमारे सीनों में ऐसा कौन सा दिल है कि इतनी जो खतरनाक शहादत होने के बाद में भी हम गमगीन नहीं हो रहे होते। बेशक हमारा दिल गमगीन है, बेशक हमें ये गम होता है, लेकिन याद रखें इस गम के अंदर, इसके बारे में जब हम जरा सी कुछ तफसील पढ़ते हैं, कुछ हम जानकारी हासिल करते हैं, तो हमें ये पता चलता है
کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رسول کون علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے جب وصال ہوا تو یقینی طور پر دل ہمارا غمگین ہوا، لیکن ماتم نہیں منایا۔ اسی حساب سے تمام خلفائے جب اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو ان کی بعد والوں نے کبھی بھی ماتم نہیں منایا، اور جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس دنیا سے وصال ہوا تو امام حسن نے بھی ماتم نہیں منایا، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا میں رہتے ہوئے جب امام حسن کا وصال فرمایا، جب انہوں نے وصال فرما لیا اس دنیا سے، تب دل ضرور غمگین ہوا تھا، لیکن ماتم پھر بھی نہیں منایا۔ ماتم اس لیے نہیں منایا اس لیے کہ ماتم منانا یہ اہل ایمان اور اہل اسلام کا شیوار نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بیچ جب شہادت امام حسین ہوتی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ الرسول کو چھوڑ کر کے مکہ المکرمہ میں آتے ہیں، اور مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں آ کر کے اسلام کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر جب آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں، اپنے اہل و رفقا کے ساتھ میں، ان انفاس قدسیہ کے ساتھ میں آپ مدینہ کو چھوڑتے ہیں تو کیا آپ کا دل غمگین نہیں ہوا ہوگا؟ بے شک یقین ہوا ہوگا۔ جب آپ نے مدینہ کو چھوڑ کر کے مکہ میں آئے تب بھی آپ کا دل غمگین ہوا ہوگا، بے شک یقینی طور پر آپ کا دل غمگین ہوا ہوگا۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ دل غمگین ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، سوال یہ تھا اور سوال یہ ہے اور نوبت یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے۔ اپنے نانا کے دین کی جو بقا کے لیے، اس کی بچانے کے لیے ہمیں اپنے تن من دھن سے اس کے اوپر قربانی دینی ہوگی۔ آپ نے واسطہ اور بلا واسطہ اپنے اس مکمل شہادت ناموں کو اپنے پڑھا ہوگا، امام عالی مقام کہاں سے آئے تھے، پھر کیسے آئے تھے، پھر کربلا میں آ گئے، اور کربلا میں آنے کے بعد میں ایسا نہیں ہوا کہ سیدھا جا کر جو جنگ شروع ہو گئی ہو، بلکہ نہیں، وہاں پہ آنے کے بعد میں بھی آپ نے کئی بار آپ نے خطبے ارشاد فرمائے، کئی بار آپ نے کوشش فرمائی کہ یہ صلح ہو جائے، لیکن پھر بھی لوگ اس بات کے اوپر اڑے رہے۔ یزید اور اس کی ٹیم اس بات کے اوپر اڑی رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے، امام حسین کا بھی سپورٹ ہمیں ہوگا، اور ان کو سپورٹ کرنا ہی ہوگا۔ جب وہ سپورٹ کریں گے تو میں یہاں کا خلیفہ بنوں گا، جب تک وہ سپورٹ نہیں کریں گے تب تک عوام الناس مجھے اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرے گی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، سامعین و ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین نے یزید کو کیوں سپورٹ نہیں کیا، یزید کو کیوں قبول نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ یزید ایک ایسا انسان تھا کہ جو اپنی زندگی میں رہتے ہوئے بھی احکام شرعیہ کو بالکل قریب سے دیکھنے اور پرکھنے والا انسان، ایک صحابی رسول کا لڑکا ہونے کے اعتبار سے اس بندے نے احکام شرعیہ کو پامال کیا۔ اس لعنتی یزید نے احکام شرعیہ کو ایک نہ سنی، احکام شرعیہ کے اوپر ایک بھی عمل نہ کیا، اگرچہ وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، اگرچہ وہ بھی رسول پاک کی امت میں موجود ہے، لیکن اس انسان کو صرف نشہ تھا، جوش تھا تو صرف خلافت کا تھا، حکومت کا تھا، اور آخرکار وہ اتنا پریشان ہو گیا، اتنا مجبور ہو گیا کہ بس اسے حکومت چاہیے، خلافت چاہیے، چاہے اس کو گھرانے رسول کے پروردہ امام علی مقام کا خون بھی کیوں نہ بہانا پڑے، چاہے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے محمد جیسے معصوم کلیاں ان کا بھی خون کیوں نہ بہانا پڑے۔ یہ تمام کے تمام کام اس نے کیے، اور کرنے کے بعد میں اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ ہمیں حکومت کرنی ہوگی، ہمیں خلافت سنبھالنی ہوگی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، سامعین و ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب یزید نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں صلاح مشورہ سے کوئی کام نہیں چلنا ہوگا، اب ہمیں جنگ کرنی ہوگی، جب جنگ کرنے کی جب باری آئی تھی، اس سے پہلے بھی امام علی مقام نے خطبہ فرمایا تھا، اور آپ نے وہاں پہ بتایا تھا کہ یزید، تجھے معلوم ہے کہ میں کس خاندان سے ہوں، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کی آل میں سے میں ہوں، جس نبی کا تو کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو بتاتا ہے
اسی نبی نے میرے بارے میں فرما دیا تھا کہ میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میں جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہوں، میں رسول علیہ السلام کی جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ لیکن یہ تمام باتیں آپ نے اس کے سامنے فرمائی، لیکن پھر بھی اس کو حکومت کا غلبہ تھا، حکومت کا شوق تھا، حکومت کے اندر اور خلافت میں وہ اس قدر میں ہو چکا تھا کہ اس نے جو ہے اپنے لوگوں کو لگا دیا، اس نے اپنے لوگوں کو جگہ جگہ پہ ڈیوٹی پہ لگا دیا، جگہ جگہ پہ اس نے جو ہے اس بات کے اوپر پابند کر دیا کہ کون کتنی آدمیوں کو قتل کرتا ہے، کون کس کو قتل کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ انسان ان انسانوں کو اس کی جگہوں کے اوپر وہ لگا دیتا ہے اور جب مارکا شروع ہوتا ہے، اب اس انسان کو حکومت کے نشے میں اور خلافت کے نشے میں اس کو اور محمد جیسے لوگ بھی نظر نہیں آئے، علی اصغر اور علی اکبر کی جوانی اور ان کا بچپنا بھی اس کو نظر نہیں آیا، اور ان کے ساتھ میں مقدس خواتین جو باپردہ تھی وہ بھی اس کو نظر نہیں آئی، اور آخر کار عباس علمبردار کو بھی انہوں نے اپنے نرگے میں لے کر کے شہید کر دیا، اور ان کے ساتھ جتنے بھی جو ہے وفود سے کچھ آئے ہوئے تھے، چاہے وہ مدینہ سے آئے ہو، چاہے وہ مکہ سے آئے ہو، لیکن آپ کے ساتھ جو آئے تھے، جب جنگ شروع ہوئی اس سے پہلے آپ نے خطبہ فرمایا کہ لوگوں یہ انسان نہیں مانتا ہے، لیکن پھر بھی میں اس انسان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا، میں اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ انسان فاسق و فاجر ہے، اس لیے کہ انسان شرعی امور کا جو ہے حرام کام مرتکب ہوتا ہے، اور میں ایسے کو کبھی بھی خلیفہ نہیں بننے دوں گا، میں کبھی بھی ایسے انسان کو خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ آج اگر میں اس کو خلیفہ بنا دیتا ہوں تو اس کے اڈے کے اندر، اس کے جو ہے گھروں کے اندر، اس کے جو ہے محل کے اندر سے ان تمام کاموں کو انجام دیا جاتا ہے جن تمام کاموں کو اہل اسلام کی نظر میں شرعی اعتبار سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ حاکم بن جاتا ہے، اگر یہ خلافت کو سنبھال لیتا ہے تو یہ انسان آگے چل کے حرام کام کو جاری کرے گا، آگے چل کے ان تمام ناجائز اور حرام کام کو روا سمجھے گا، اور آنے والی نسلیں بھی اور آنے والی امتیں بھی اس حرام کام کے مرتکب ہوں گی۔ اس لیے میں اس کو جو ہے نا خلیفہ تسلیم نہیں کرتا، میں اس کو جو ہے اپنا حاکم نہیں بنا سکتا۔ اسی اعتبار سے اور اسی محو کے اندر سے میرا عزیز دوستو، سامعین و ناظرین، یہ جنگ کربلا شروع ہوئی، اور جنگ کربلا ہونے کے بعد میں کس قدر وہاں پہ مارکا آرائی ہوئی، اور کس قدر حق اور باطل کے جو ہے بیچ میں جو ہے جنگ ہوئی۔ اور یاد رکھیں، ہم اور آپ اس جنگ سے یقینی طور پر ہم اپنے دل کو غمگین، جب ہم سنتے ہیں تو دل ہمارا غمگین ہوتا ہے، لیکن ایک جوش محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ جنگ ہم صرف اور صرف اس جنگ کو جنگ کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ جنگ ہو جانے کے بعد میں، حق اور باطل کا فیصلہ ہو جانے کے بعد میں، اور تمام ان کاموں کو ہو جانے کے بعد میں، اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا، اب ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنی ہوگی کہ اتنا خطرناک معاملہ ہونے کے بعد، اتنا خطرناک مارکا ہونے کے بعد، اور مکمل طور پہ اسلام کی فتح یابی ہونے کے بعد میں لگ بھگ 1400 یا 1450 سال ہونے آئے ہیں، آج تک اسلام کا غلبہ ہے، آج تک اسلام کا کلمہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، آج تک اسلام کی تمام امور و احکام کو جاری کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہر محلے میں، ہر مسجد میں، اور ہر گلی میں، اور ہر شہر میں، ہر صوبہ کے اندر، اور ہر ملک کے اندر، دنیا کے کونے کونے کے اندر ذکر شہادت امام حسین ہوتی ہے، ذکر شہادت امام حسین کا جو ہے بول بالا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جو ہے ہم سے پہلے والے لوگ، ہم سے پہلے والے جو بزرگان دین تھے، انہوں نے ذکر شہادت امام حسین کو سن کر کے اپنی آپ کو اسلام کے حوالے کیا تھا، اپنی آپ کو اس شہادت سے بہت بڑا سبق حاصل کیا تھا۔ سبق یہ تھا کہ جس طرح سے امام حسین جو ہے ظالم اور جابر انسان کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے رہے، اپنے جان کی پرواہ نہ کی، چھوٹے چھوٹے بچے اون محمد کی پرواہ نہ کی، علی اصغر اور اکبر کی قربانی کی پرواہ نہ کی، عباس علمبردار کی جوانی، ان کے جو ہے نا شہادت کی پرواہ نہ کی، بلکہ اگر آپ کو پرواہ تھی، اس بات کی پرواہ تھی کہ میرے نانا کا دین جو ہے داغدار نہ ہو جائے، میرے نانا کا دین جو ہے کسی طرح سے داغ نہ لگ جائے، اور اس کے اندر کچھ خرافات شامل نہ ہو جائے، چاہے ان تمام خرافاتوں کو
چاہے ان تمام داغوں کو مجھے اپنے خون سے کیوں نہ دھلنا پڑے، مجھے اس کو دھل کر اس پاک رکھنا ہوگا۔ اور یہی ہوا، آپ کی شہادت خدا کو منظور تھی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، اکثر لوگ یہ شبہ میں ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اتنے بڑے، اور بے شک یقینی طور پر وہ تمام اللہ تعالیٰ کے بتائے سے جانتے تھے، جب آپ نے پہلے بتا دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ کو آپ کے بارگاہ میں ایک شیشی تھی، وہ شیشی کو آپ نے ام سلمہ کو دیا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میرا نواسہ جو ہے شہید ہو جائے گا، جب ان کی شہادت ہو جائے گی، اس شیشی میں رکھا ہوئی مٹی جو ہے خون بن جائے گی۔ آخرکار یہی ہوا، جب آپ کو یہ خبریں معلوم چلی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے خواب دیکھا کہ ایسا منظر کربلا کی سرزمین پہ ہو چکا ہوتا ہے، تو دوڑی گئی، اور آپ نے جب آپ شیشی کو دیکھتی ہے تو اس واقعی شیشی کے اندر جو مٹی بھری ہوئی تھی، وہ مٹی جو ہے خون بن جاتی ہے۔ میرا عزیز دوستو، امام حسین نے اپنے اہل و عیال کا خون اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دے کر کے، اپنی جان کی قربانی کو خداوند قدوس کے بارگاہ میں دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر تمہارے سامنے ظالم و جابر بادشاہ اگر کوئی آ جاتا ہے، اگر کوئی انسان شرعی امور کو لانگ کر کے اس کی اگر بے حرمتی کرتا ہے، اگر وہ احکام اسلامیہ کو بے حرمتی کرتا ہے اور اپنا قانون جب وہاں پہ رکھنا چاہتا ہے، ہمارا آپ کو اہم فریضہ بنتا ہے، ہمیں ان کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں اس باطل طاقتوں کے سامنے ایمان کی طاقت کے ساتھ میں کھڑا ہونا ہوگا۔ آج ہماری اور آپ کی اور اس امت کی پستی کا سب سے بڑا سبب یہی بنا ہوا ہوتا ہے کہ آج ہم نے ذکر شہادت امام حسین کو ہم نے سجا لیا، اور ان کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے سن لیا، لیکن ابھی ہم اور آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس مارکا سے، اس کربلا کی زمین سے، اور اس مقدس ذات گرامی نے اپنی جان کو خدا کے بارگاہ میں دے کر کے ہمیں بہت بڑا پیغام دے دیا، اور بہت بڑا لازوال احسان فرما دیا کہ ان کا احسان ہم زندگی بھر، بلکہ ہزاروں زندگیاں مل جائیں، ہم ان کے احسان کو اتار نہیں سکے، ہم ان کے احسان کو عطا نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو، جہاں ہم اپنے دلوں کے اندر سے محبت امام حسین رکھتے ہیں، وہاں پہ ہمیں شریعت کی بھی محبت رکھنی ہوگی، وہاں پہ ہمیں احکام اسلامیہ کو بھی سر انجام دینا ہوگا، وہاں پہ ہمیں اپنی پستی کا سبب بھی ڈھونڈنا ہوگا، وہاں پہ ہمیں اپنی کامیابی اور کامرانی کے کچھ راستوں کو بھی ڈھونڈنا ہوگا۔ یاد رکھیں، آج اس ذکر شہادت امام حسین کا سہارا لے کر کے کتنے لوگ پیسے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں، رو رو کر کے، سلسیاں لے لے کر کے لوگوں کو نوحہ نامہ سناتے ہیں، لوگوں کو شہادت نامہ سناتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں سے کہا جائے کہ آپ فی سبیل اللہ آ کر کے ذکر شہادت امام حسین سنائیں، تو وہ اس قدر سسکیاں لے لے کر کے اور لوگوں کو رو رو کر کے شہادت نامہ نہیں سنائیں گے، بلکہ ان کے سنانے کا ایک مجبوری بنا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے بیک ورڈ میں ان کا میٹر چلتا ہوا نظر آتا ہے، کثیر تعداد میں امت بیٹھی نظر آتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں امت بیٹھی ہوتی ہے، اور ان کو رو رو کر کے کیسے کہانیاں سنا کر کے، بالخصوص کربلا کی شہادت کو سنا کر کے، انہیں رولا رولا کر کے پیسے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، اگر یہ کام بہت پہلے اگر رک جاتا، کاش کہ رک جائے، تو آج ہماری پستی کا سبب نہیں بنتا، آج امت مسلمہ آج بھی حکومت میں نظر آتی، آج بھی امت مسلمہ جو ہے سیاست میں اپنا مقام حاصل کر رہی تھی، لیکن رولا رولا کر کے، سسکیاں دے دے کر کے ان کو بزدل بنا دیا۔ اعلیٰ حدیث امام احمد فرماتے ہیں کہ ذکر شہادت امام حسین کے اوپر غمگین ہونا بھی تو منع ہے، حرام لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ خوشی کا ماحول ہے کہ ہمیں انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر کے مذہب دین حنیف کو ہم تک پہنچا دیا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے، لوگوں کو اس طرح کی باتیں سنا سنا کر کے، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جب لوگ ذکر شہادت امام حسین کو سنا کرتے تھے، تو جب سناتے تھے لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہوتا، اور وہ لوگ اپنے اندر ایمانی جان کو بھرنے کے بعد میں
मुकर्रस दीन इस्लाम में मुबारका को आगे तक फैलाने के लिए उनका सहारा लिया करते थे और बड़े जोश और मोहब्बत के साथ में वो सहारा लिया करते थे। जब बातिल ताकतों को लगा कि ये अगर जिक्र शहादत इमाम हुसैन को सुन सुन करके जब ये इतने मुकद्दस और अपने अंदर बने ईमानी और जिस्मानी ताकत और कुव्वत हासिल करने लगेंगे और जब ये दुनिया भर में फैलेंगे तो हमारा का खत्म हो जाएगा, हमारी जो है बाकी ताकतें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसलिए किसी भी तरीके से इसको रोकना होगा। काम यही रहेगा, लेकिन तरीका अंजाम उसका जो तरीका कार होगा उसको चेंज कर दिया गया। और जहां तक मैंने सुना और इसके बारे में पढ़ा, अब्दुल्ला बिन रवाह नाम का इंसान था, उसने इसी जिक्र शहादत इमाम हुसैन को जहाँ पे ईमान की रूह से लोग सुना करते थे, मोहब्बत के अंदर सुना करते थे और अपने अंदर रूहानी ताकतें पैदा कर लेते थे, अब उन लोगों को वही मातम और वही जिक्र शहादत इमाम हुसैन होता है, लेकिन उनको रो रो करके सुनाया जाता है, उनको रो रो करके सुनाया जाता है, उनको परेशान हाल कुन कर करके उनको सुनाया जाता है। जहाँ पे लोग उसको सुन करके अपने रूहानी ताकत को पैदा किया करते थे, अब वही लोग हैं, जिक्र वही है, लेकिन अब उनको रुला रुला करके उनको सुनाया जा रहा होता है। अब उनको जो है मातम कर करके उनको सुनाया जा रहा होता है, ताकि लोग बुज़दिल बन जाएं। और लोग बुज़दिल बनते गए, लोग इतने बुज़दिल बनते गए कि ये ऐसा अमल पैदा हुआ उस जमाने में कि ये अमल करते करते आज एक अलग गिरोह बन गया, आज एक अलग गिरोह उनके अंदर जो है शामिल हो गया, जबकि इसकी कहीं से कहीं तक कोई भी हैसियत नहीं है। मेरा अजीज दोस्तों, जब ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उस यजीदी लश्कर ने, उस यजीद लानती लश्कर ने कैद किया, हाथों में बेड़ियां डाली, गले में तोप डाला और पैरों में बेड़ियां डाली और उसको आपको वो लोग लेके चलने लगे। लोगों को लगा कि ये महसूल हो चुके होंगे, अब इनसे कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरा अजीज दोस्तों, आपने एक ही झटका दिया, तमाम हाथ और पैर की और गले का तोक टूट करके अलग हो गया। और आपने फरमाया कि आप इस बात को ना सोचें कि हम बेबस हो चुके होते हैं, आप इस बात को ना सोचें, अपने फिक्र और वहम में ना लाएं कि हम जो है कैद कर लिए गए हैं, हम मजबूर हो गए हैं। आपने फरमाया खुदा की मर्जी थी, ये खुदा की मंशा थी, पर आप हमें मजबूर नहीं कह सकते। मेरा अजीज दोस्तों, सामीन और नाज़रीन, बस यही वजह बनी कि आज हम और आप जहाँ कहीं हम जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का डिपार्टमेंट क्यों ना हो, आज कौम मुस्लिम को एक पस्ती का जो मुझे देखना पड़ता है। आज आप देखते होंगे और महसूस करते होंगे कि जहाँ कहीं पे भी कुछ गलत काम होता है, उसको किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके इसी कौम मुस्लिम पे ला करके थोप दिया जाता है, लेकिन कौम मुस्लिम फिर भी अपनी पस्ती का हल नहीं ढूंढती नजर आती है। आज जहाँ भी जिक्र शहादत इमाम हुसैन की वजह से अगर हम और आप और मिल्लत इस्लामिया इस बात का अहद कर ले कि जिस तरह से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जालिम और जाबिर के सामने अपने सर को नहीं झुकाया और वहां पे अपने खून को बहाना मंजूर समझा, लेकिन उस शरीयत के मुखालिफ इंसान के हाथ में हाथ देना गवारा नहीं फरमाया। इसी तरीके से अगर आज हम और आप ये अहद कर लें कि हमें हमेशा खुदा की मर्जी से उसकी बारगाह में झुकना होगा, हमें किसी भी शरई काम से मुंह नहीं मोड़ना होगा, हमें कभी भी खुदा के यहाँ से सजदे जो करने का जो हमें अल्लाह ताला सिस्टम अता फरमाया, जिसको नमाजों की शक्ल में कहते हैं, हमें कभी नमाज नहीं छोड़नी होगी, तो यकीन जाने कौम मुस्लिम अपनी पथी से बाहर आ सकती है। आज हम बयाना के अंदर और तरह तरह की तकारीर हम सुनते नजर आते हैं कि इमाम हुसैन का जब सर जसद अक़दस से अलग किया गया, उनको जुदा किया गया, तो उस वक्त उलमा कराम और बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि आप उस वक्त जो है हैयत सजदे की थी, यानी आप सजदे में गए हुए थे, लेकिन उस सजदे की हालत में भी आपने अल्लाह ताला का जिक्र नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला का जो है वो अहम तरीन काम नहीं छोड़ा। अगर आज हम और आप अपनी पथी का सबब ढूंढते हैं, अगर आज हम और आप
अपनी पस्ती का सबक अगर हम हासिल करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं कि इमाम हुसैन की उस हौसले की वजह से, उस जज्बे की वजह से आज हम और आप भी बिलखुसूस अवामुन्नास मिल्लत इस्लामिया खुदा के तमाम फरामीन पर अमल करने नजर आ जाए। और उन मुकद्दस और बाबरकत हस्तियों ने जिस जिस तरीके से मज़हब इस्लाम के पैगाम को हम तक पहुंचाए हैं, आज हम उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें तो आप यकीन जानें हमारी पस्ती खत्म हो सकती है। आज हम फिर जो है बुलंदोबाला हो सकते हैं, आज हम फिर इस दुनिया के अंदर परवान चढ़ सकते हैं। बस वजह यह है कि हमें कल से नहीं बल्कि आज से नहीं बल्कि अभी से हमें अभी अपने आप को उन मुकद्दस नफूस से खुद के नक्श कदम पर हमें और आपको चलना होगा, तब जाकर के हमारी आपकी पस्ती बेशक खुदावंद कुद्दूस अपने फजल करम से दूर फरमाएगा। आज जहाँ कहीं देखो, जहाँ कहीं भी सियासत में या किसी जॉब में ले लो, जब कहीं मुसलमान का नाम आता है उसके साथ में 10 तरीके से जो है ना बातें होती है। कभी उसे जॉब मिलता है तो कभी उसको निकाल दिया जाता है। वजह यह है कि हमने जिक्र शहादत इमाम हुसैन को ज़रूर सुना है, लेकिन हम अपने आप के अंदर रूहानी ताकत को हासिल नहीं किया है कि उन्होंने आखिर किस वजह से जो है अपने जान को भी गंवाना पड़ा, अपने जान का भी जो है ना खुदा के बारगाह में नजराना दे दिया, अपने मुकद्दस खून को भी दीन हनीफ दीन इस्लाम की खातिर अपने खून को बहा दिया। तो हमें और आपको भी ये इरादा करना होगा, हमें और अपने मुकद्दस इरादों को और उन मुकद्दस नफूस से खुदा के तवज्जुह से अपने इरादों को पुख्ता और मजबूत करना होगा कि हमें भी जहाँ कहीं जालिम और जाबिर इंसान नजर आता है, वो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, हमें उसको ईमानी रूह और रूहानी ताकत से उसको खत्म करना होगा। ये उस वक्त होगा जब हम और आप यकीनी तौर पर मुकम्मल तौर पर रसूल कौनैन की बताई और रास्ते पर हमारी जिंदगी गुजरती नजर आएगी। आप याद रखें, कितने ऐसे मुसलमान हैं कि जिनको सही मानों में नमाज याद नहीं है, उनको अराकीन याद नहीं होते हैं, लेकिन जब वो इस करबला का महीना आता है, माह मुहर्रम हराम आती है और आज 10 मुहर्रम हराम है, इसके बारे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बड़े मोहब्बतों का जो है ना परवाना पेश करते हैं और बेशक करना चाहिए, लेकिन इससे पहले हम अपनी इबादतों का ध्यान रखें, हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि खुदावंद कुद्दूस जब हमारे ऊपर कुछ आफत आ सके, कुछ ऐसी नौबत आ सके, तो अल्लाह तबारक व तआला उन मुकद्दस 72 अनफास कुदस के तवस्सुल से वो बातिल ताकतें जो हमारे पर जुल्म और जबर करती है वो अल्लाह ताला खत्म फरमाए। मैंने आपके सामने आयत करीमा पढ़ी, रब तबारक व तआला अपने कलाम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र हासिल करो, ऐ ईमान वालो मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। आपको मालूम होगा कि इमाम हुसैन कई दिनों तक करबला के मैदान में रहे, आपको मालूम है और अच्छी तरह हम जानते हैं कि वहाँ पे कई दिन और शब तक आप वहाँ पे मौजूद रहे, तो जाहिर सी बात है नमाज का भी वक्त आया होगा, नमाजें बेशक गुजरी होंगी, एक भी नमाज आपने उस हालत में भी कज़ा नहीं फरमाई। आप मुसलसल नमाजों को अदा करते रहे, तहज्जुद को भी अदा करते रहे और मुक़द्दस कलाम पाक की तिलावत भी फरमाते रहे, आपने एक भी नमाज उस वक्त में आपने कज़ा नहीं फरमाई। यहाँ तक आपके साथ में जितने लोग थे उन्होंने भी नमाज को कज़ा नहीं फरमाई। औने मोहम्मद के छोटी छोटी लाशों पे आपने कंधे के ऊपर आपने सब्र फरमाया। आपके सामने अली असगर अली अकबर के भी मुकद्दस जिस्म को आप अपने कंधे के ऊपर बिठाकर खेमे के अंदर लाते हैं, लेकिन आप फिर भी सब्र करते हैं। अब्बास अलमबरदार के बाजू कट जाते हैं और आपकी शहादत भी हो जाती है, फिर भी आप सब्र करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, कुरान अल्लाह ताला का मुक़द्दस कलाम है, हमें रहनुमाई अता फरमाता है। ए ईमान वालों, आप मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। इमाम हुसैन आले मकाम ने इमाम इतना मुकद्दस कि आपने
मुकद्दस कलाम पाक को तिलावत करते करते आपने इस खतरनाक घड़ी के अंदर भी, इस गमगीन घड़ी के अंदर भी आपने इस्लाम के काम को नहीं छोड़ा, इस्लाम के बयान को आपने नहीं छोड़ा, और आप सब्र इस्तकामत का दामन आपने नहीं छोड़ा। ऐसे हालात में रिवायतों में आता है कि आपकी उस वक्त उम्र गालिबन 55 या 56 साल की थी। ऐसी जिंदगी के अंदर आपने उन नौजवान लाशों को उठा उठा करके आप खेमे में लेके आते हैं, फिर भी आप सब्र कर रहे होते हैं। आपके सामने और मोहम्मद को भी जो है शहीद करके जाता है, फिर भी आप सब्र फरमाते हैं। यहाँ तक कि हर मुश्किल घड़ी में आप नमाज को अदा फरमाते रहे और सब्र का दामन हाथ में थमा जाए। सब्र हमेशा हमेशा आपके दामन के अंदर समाया रहा और इसी का नतीजा मिला। कुरान पाक फरमाता है कि ईमान वालों, आप मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। तो आपने इसके ऊपर अमल करके दिखा दिया और हमें ये अपनी नमूना हयात को आपने हमारे सामने पेश फरमा दिया। क्या है आने वाली उम्मत हो, मेरे नाना की उम्मत, आने वाले वक्त तक और सुबह कयामत तक इससे और कोई मिसाल नहीं, करीमा की तफसीर नहीं नजर आ सकती कि जो इमाम हुसैन ने हमें और आपको अता फरमाया। सब्र कैसे करना है वो भी आपने हमें अता फरमाया, और नमाज कैसे अदा करनी है और किस हिसाब से उसको हमेशा कंटिन्यू उसको अदा करना होता है, चाहे कैसा भी मामला क्यों ना हो, चाहे वो सफर का मामला हो, चाहे वो हजर का मामला हो, चाहे वो तिजारत का मामला हो, चाहे वो जंगो जिदाल का मामला हो। नमाज अपने दामन से न जाने, नमाज किसी भी हाल में हमसे कजा ना होने पाए। नमाजों को हमने इस कदर कजा करने शुरू कर दिए हैं, नमाजें हमने इस कदर जो है ना कजा करने शुरू कर दिए हैं, हम छोड़ते चले जा रहे होते हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अब माहौल ऐसा बन जाता है जहाँ कहीं नमाज का वक्त होता है और वहाँ पे 50-60-100 आदमी बैठे होते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिक वो आदमी कुछ कुछ उठ करके एक तरफ चले जाते हैं, वो ये कह के चले जाते हैं नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़नी है। अल-अयाज़ु बिल्लाह, सुम्मा अल-अयाज़ु बिल्लाह, वो बैठने वाले लोग हैं, कहने को वो भी कलमा पढ़ने वाले हैं, कहने को वो भी मुसलमान हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर रेशा भी नहीं गुजरता कि जिस तरह से हमारे बीच में अब तक बैठे हुए लोग, उनके ऊपर जिस तरह से नमाज फर्ज है, खुदावंद को फर्ज है, ठीक इसी तरीके से हमारे ऊपर भी नमाज फर्ज है। लेकिन याद रखें, एक अलमिया बन चुका होता है, एक निशान बन चुका होता है, दाढ़ी रख ली है नमाज पढ़ता होगा, टोपी पहन ली है नमाज पढ़ता होगा। जब कहीं भी वक्त होता है तो ऐसे लोग चले जाते हैं नमाज की खातिर में, वो लोग समझ जाते हैं हाँ ये लोग नमाजी हैं, हाँ ये लोग नमाज पढ़ने वाले हैं, और वो लोग वहीं बैठे हुए होते हैं और उनको एहसास नहीं होता हमें भी नमाज पढ़नी है। मेरा दोस्त, सबसे बड़ी पस्ती का क्या है, सबसे बड़ी पस्ती का जो एक वजह है, बस यही वजह है, तरीका मुस्तफा को तोड़नी है वजह बर्बादी। तो किसी कौम बेइख्तियार हुई अपनी, याद रखे मेरा अजीज दोस्त, यह अशार आगे पीछे हो सकता है अल्फाज के एतबार से, लेकिन बिलखुसूस बात इसके अंदर ये निकल के आती है, हमने और उम्मत मुसलमा ने, मिल्लत इस्लामिया ने एक तरफ नमाजों के दामन को छोड़ दिया, अहकाम इलाहिया को छोड़ दिया और फरमान मुस्तफा को छोड़ दिया, और इसी के साथ में दुआ में गुजर गए, मातम में चले गए, गमगीन होने में चले गए, दिलों को जो है महजून करके बैठ गए, रो रो करके और मातम कर करके लोग बुज़दिल बन गए होते हैं। आज हम उन्हें अपनी इसी तंजीम के ताल्लुक से, हम इसी प्लेटफॉर्म से हम जब उनको कहते हैं सुन्नी यूथ विंग आतंकवाद विरोधी संगठन डट करके जालिम और जाबिर का जो है मुकाबला करती है, सुन्नी यूथ विंग आतंकवाद विरोधी संगठन इस हिंदुस्तान भर के अंदर काम करती है। आप तमामी हजरात इस तंजीम के साथ और अपने बेबाका ना होकर के और अपने अंदर से बुज़दिली खत्म की और बिलखुसूस अपने दिलों के अंदर ईमानी ताकत पैदा करने के बाद खुदावंद कुद्दूस को शुक्र अदा करते हुए अपने आप को खुदा के बारगाह में ला करके और सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं। शायद पर यकीन है हमें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें फिर से जो है ना बुलंद बाला फरमा देगा। आप पढ़ चुके होते हैं, आप सुन चुके होते हैं, मैदान बदर के अंदर से सिर्फ 313 मुसलमान थे, कामयाब हो गए, और ऐसे कितने ऐसे जंगो जिदाल हुए थे
जिसके अंदर अक्सर बार पहले ईमान की तादाद हमेशा कम रहती, लेकिन ईमान की ताकत बड़ी मजबूत रहा। तो आपको पता याद हुआ, और आज सैकड़ों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में इस दुनिया के अंदर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान बसते हैं, लेकिन फिर भी हमें पस्ती का मुंह देखना होगा। वजह यह है कि आज हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया। आज हम और आप यकीनी तौर पर जिक्र शहादत इमाम हुसैन मनाते हैं, सुनते भी हैं और इसके इंतजाम और इंतराम भी करते हैं, बेशक करना चाहिए, लेकिन लोग सुन सुन करके सिर्फ सुन लेते हैं, इसको अमली जामा नहीं पहना, इसको अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश नहीं करते। काश हम उनमें से कुछ कुछ अमाल को अगर हम अपना लें, बेशक यकीनी तौर पर आज भी हम कामयाब हैं। और इसी आयत करीमा के आगे ला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु, और जो लोग अल्लाह ताला के राह में शहीद कर दिए जाए, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, खुदा के दीन की खातिर जब उनको शहादत हो जाती है, खुदा के मुकद्दस दीन मुस्तफा को बचाने की खातिर जब वो लोग अपनी जान को गंवा देते हैं, अपने आप को खुदा के बारगाह में जो है ना अपने सरों को नजराना पेश कर देते हैं, ऐसे लोगों को कभी मुर्दा नहीं कहा जाता, बल्कि वो सुबह क़यामत तक जिंदा है। हाँ, कुरान फरमाता है बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो तो जिंदा हैं चाहे किस कंडीशन में हो, खुदा जाने, लेकिन हमें और आपको उनकी जिंदगी का शऊर, हमें और आपको उनकी जिंदगी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन आज माहौल ऐसा देखने में नजर आता है, जहाँ कहीं देखो मुर्दे की रट लगा के बैठे होते हैं, वो भी मुर्दा हैं, दुनिया से चले गए, मादल रब्बिल आलमीन मुर्दा हो गए, अब वो कुछ नहीं कर सकते, अब वो ये नहीं कर सकते, अब वो ये नहीं कर सकते। इस तरह से बातें सुन सुन कर मिल्लत इस्लाम बना, और आज हम और आप महसूस कर रहे होते हैं, एक जिसकी एक जर्रा बराबर हैसियत और औकात नहीं है, वो आज हमारे गली मोहल्लों में आकर, हमारे शहरों के अंदर आकर और फितना फसाद मचा देता है, और वो हमें ऐसी ऐसी बातों के अंदर मुलव्वस कर देता है कि आज जहाँ हमें शहादत ज़िक्र इमाम हुसैन को लेकर के जो हमें अमल करना था, उस अमल को हम भूल बैठते हैं, उस जिक्र को हम जो है पसीपुस्त कर देते हैं, और हम मुनाजरों के अंदर बैठ जाते हैं, हम सवाल और जवाब में बैठ जाते हैं, जबकि कुरान साफ साफ इरशाद फरमाता है बल अहयाउन वलाकिन, हाँ यकीनी तौर पर हमें एहसास नहीं होगा, हमें उनकी जिंदगी कोई शऊर नहीं है, लेकिन खुदा कलाम फरमाता है कि ये आयत करीमा जो है तमाम अनफास कुत्ते के बारे में है, जो खुदा के दिन की खातिर, खुदा के दिन की वक़ा की खातिर, शरीयत मुस्तफा की खातिर जिन्होंने अपने आप को पेश कर दिया खुदा के बारगाह में, जिन्होंने अपनी शहादत को खुदा के बारगाह में जो है सुपुर्द कर दिया है, कि उनके बारगाह में लोग एतराज करेंगे कि आयत करीमा तो शहादत इमाम हुसैन से पहले भी नाजिल हो गई, ये रसूल पाक की हयाती मुकद्दस ज़ाहिरी तौर पर थी, उस ज़माने में नाजिल हो गई थी। इस आयत करीमा को इमाम हुसैन की शहादत पर कैसे, आप याद रखें, यहाँ पे अल्लाह ताला का इरशाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। हजरत इमाम हुसैन ने जिस तरह से सब्र फरमाया था और जिस तरह से नमाज से मदद हासिल की थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक ऐसी मिसाल आपको कहीं नहीं। और फिर आगे फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और उन लोगों को तुम मुर्दा मत कहो जो अल्लाह की बारगाह में शहीद कर दिए गए, जो अल्लाह की बारगाह में कत्ल कर दिए गए। इमाम हुसैन ने भी तो अपने सरे मुक़द्दस को, अपने अहल वजाल को, अपने घर वालों को, अपने साथियों को उस मैदान करबला के अंदर शहादत का जाम नोश फरमाया, और उसके बाद में आपने भी शहादत का नोश फरमाया, इसलिए कि आप भी अल्लाह ताला के मुक़द्दस दीन हनीफ, दीन इस्लाम की फरोग ही की खातिर आपने भी शहादत का फरमाया। वरना क्या जरूरत थी आपको मदीना छोड़ने की, क्या जरूरत थी आपको मक्का छोड़ने की, क्या जरूरत थी छोटे छोटे औने मोहम्मद को अपनी आंखों के सामने शहीद हो रहे थे इसको देखने की, अली असगर को शहीद होते देखने की, अली अकबर के शहीद होते हुए देखने की, पास अलमबरदार के बाजू कटते हुए देखने की, और आपके आंखों के सामने
ये तमाम के तमाम मंजर कशी हो रही है, लेकिन आप तो क्या जरूरत पड़ी कि आप तमाम इस मंजर को देख रहे होते हैं पर फिर भी सब्र कर रहे होते हैं। वजह ये है कि आपको अपने नाना के दीन, आपको अपने नाना के मुकद्दस दीन हनीफ के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से इसके अंदर गलत मलत आप बर्दाश्त नहीं करना करते। आप नहीं चाहते थे कि सुबह कयामत तक मेरे नाना का दीन जो बड़े मुश्किलों के साथ में, बड़ी परेशानियों के साथ में हम तक पहुंचा है और आगे की नस्लों तक पहुंचेगा और सुबह कयामत तक दीन इस्लाम जाएगा, तो इस मुकद्दस दीन इस्लाम के अंदर कोई ऐब न लग जाए, कोई बुराई न लग जाए। और यजीद के खानदान के अंदर, यजीद के महलात के अंदर आप देखा होगा, सुना होगा और महसूस किया होगा कि उसके खानदान में, उसके उस महल के अंदर से तमाम काम हो रहा था, हराम काम हो रहा था। जो शरीयत मुतहरा के अंदर जो नाजायज जो हराम थे, वो तमाम काम उसके महल में हुआ करता था। इसी तो आपने अपने जान की कुर्बानी दी, इसलिए तो आपने जो है अपने अहल वयाल की कुर्बानी दी ताकि नाना का दीन बच जाए। और आपकी कुर्बानी और आपके साथ में रहने वाले तमाम बात की दवाई दी, वो भी खुदा की बारगाह में, वो भी खुदा की बारगाह में मुकद्दस तरीन शहादत हासिल कर, और वो तमाम मौजूद और मुकर्रम अल्फाज से किया इसी आयत करीमा में शामिल है। जो लोग खुदा की राह में शहीद कर दिए जाते हैं खुदा के दीन की खातिर, वो कभी मुर्दा नहीं होते, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो बाहयात हैं, बल्कि वो उनकी जिंदगी वो जावेदानी नजर आती है। ये अलग बात है कि हमें और आपको एहसास, ये अलग बात है कि हम और आप उनकी जिंदगी के बारे में, लेकिन याद रखें हम और आपको हमेशा चाहिए जिक्र शादी इमाम हुसैन सुन करके इसके ऊपर अहद करें, मालिक मोला हम हमेशा हमेश नमाज और दामन नहीं करेंगे। हम अहद करते हैं, पैमान लेते हैं इस बात का, हम नमाजों के पाबंद नहीं और हम हमेशा हमेश मुक़द्दस शरीयत मुस्तफ़ा के ऊपर अमल करेंगे। और जहाँ कहीं इसके बारे में पामाली होती नजर आएगी, हम उसको रोकने। याद रखें ईमान के बहुत बड़े दर्जे हैं, बहुत सारे दर्जे हैं। जब कहीं बुराई होती है और बुराई होती नजर आती है, तो वहाँ पे ईमान का सबसे आला दर्जा ये होता है वहाँ जाकर के अपनी हाथत बुराई। और अगर ये नौबत ना आए और हमारे अंदर इतनी ताकत और कुव्वत ना है, तो उसके दूसरा दर्जा ये है जबान से जो है हम उस बुराई को रोकें, उस बुराई के बारे में रोकने की कोशिश करें, लोगों को उसके बारे में समझाएं और उसको समझाने के साथ साथ तलकीन दिलाएं, तरगीब दिलाएं कि ये जो हम और आप काम करते हैं ये करीब मुस्तफा में दुरुस्त नहीं है। और ईमान का सबसे अदना जो दर्जा नजर आता है वो ये है कि जहाँ कहीं बुराई होती है, वो बुराई को अगर हम हाथ और पैर और अपने जिस्म से और अपने किसी सिस्टम से हम उसको खत्म नहीं कर सकते, बात से कह सकते हैं कि आज हम और आप सोशल मीडिया का सहारा ले रहे होते हैं, हम इसके जरिए से लोगों को बताते नजर आते हैं। ये भी नहीं हो रहा आजकल, कम से कम उसको दिल में बुरा जाने। याद रखें हम दिल में बुरा जान सकते हैं, हम अकेले बच सकते हैं, बल्कि मिल्लत को नहीं बचा सकते। लोगों हमें और आपको आगे आना होगा, हमें और आपको रूहानी ताकत हासिल करके अपने आप को और अहले ईमान के ईमान को बचाना होगा। तो आज के माहौल के अंदर तो हम और आप तमाम के तमाम नज़ायर हम देखते नजर आते हैं। याद रखें अपने आप को हक के हवाले करें, बातिल से दूर रहें। और याद रखें इसी मुकद्दस शहादत इमाम हुसैन ने हमें दर्ज किया है और मुसलसल दर्ज देती नजर आती है। जब कहीं पे भी हक और बातिल की लड़ाई होती है, आप यकीन जाने हक वालों को हो सकता है कि बज़ाहिर कुछ नुकसान नजर आता है, जो है जीत हमेशा हक की होती है। अलग बात है कि जो जीत 5 दिन में होने वाली होती है, हो सकता है कि वो 1 महीने में जीत हो जाए, लेकिन आखिरकार शर्त यह है कि हम और आप हक के साथ। याद रखें हम और आप इस मुकद्दस माहौल के अंदर, इस मुकद्दस माह मुबारक के अंदर, इस मुकद्दस माह मुहर्रम हराम के अंदर, आज आशूरा का दिन है। आप तमाम हजरात में रोजे से होंगे, रोजा रखा होगा, लेकिन आप इस बात को तहैया करें और अपने अंदर एक दिल की कोने में बिठा लें। हमें जिक्र सच्चा पक्का मुसलमान बनाए ताकि हम
और आप और मिल्लत इस्लामी पर आन पड़े। मालिक मौला इस जिक्र शायद इमाम हुसैन तमाम परेशानी को दूर फरमा दे और इस मुकद्दस जिक्र के तवस्सुल से तमाम आलम इस्लाम के अंदर हमेश के लिए खून अता फरमा दे, खुशियाँ अता फरमा दे। जो परेशानियां मुसीबतें हैं वो तमाम मालिक मौला खत्म फरमा दे। पर याद रखें, कत्ल हुसैन असल में मर्जी यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला की बात। आप जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। मौजूद सामीन और नाजरीन, मैं आपको ये बात कहकर के अपनी बात करूंगा। कत्ल हुसैन असल में मर्जी यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला की बात। जब जब करबला का जो है साल आता है, जब जब मुहर्रम और हराम का महीना शुरू होता है, करबला की याद ताज़ा होता है, इमाम हुसैन के जिक्र और उनके तज़किरे होने शुरू होता है। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, शहर शहर में, सुबह सुबह में, मुल्क मुल्क में, दुनिया भर के अंदर जिक्र शहादत इमाम हुसैन और इसी के साथ में उस लाइन यजीद के ऊपर लानत भी बरस सकती है। उस जमाने में यजीद ने पल भर के लिए इमाम हुसैन के मुकद्दस सर अक़दस को, उनके मुकद्दस जिस्म अक़दस से जुदा करके अपने आप को समझा था, मैं कामयाब हो गया, मैं जीत गया हूँ। इमाम हुसैन को मैंने जो है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन शहीद कर दिया है, कत्ल कर दिया है, लेकिन ईमान की ताकत कहती है, ईमान की रूहानी हालत ये कहती है, कत्ल हुसैन असल में मर गई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम हजरात ने बड़ी मोहब्बतों के साथ में इस प्रोग्राम को सुना और ये प्रोग्राम आतंकवाद विरोधी नशर किया जा रहा होता है। और आप जिससे आज आप 4 बजे से यहाँ से आप मौजूद हैं, इसी तरह से मुसलसल 3-4 दिनों के लिए आप तैयार रहें। आपको मजीद और प्रोग्राम सुनने हैं। मैंने अब तक जो कुछ आपके सामने बयान किया, अगर मैंने कुछ कहने में, कुछ बोलने में कुछ गलती हो गई, आपसे मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप तमामी हजरात अहले हक की तरफ आएँ और अपने आप को अहले इस्लाम की खिदमत की खातिर अपने आप खिदमत दीन के अंदर लग जाएं। आप यकीन जानेंगे खुदावंद कुद्दूस की मखलूक आपकी खिदमत। अल्लाह ताला हम तमाम हजरात को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और बिलखुसूस नेशनल प्रेसिडेंट अलहाज शेख वसीम अशरफी साहब के लिए अल्लाह ताला उन्होंने फरमाए और मंजूर रजा साहब जो सिविनी से ताल्लुक रखते हैं, जो राष्ट्रीय सचिव है, उनके भी उम्र में अल्लाह ताला बेपनाह बरकत देता है। और हमारे मीडिया हेड अरशद साहब जो है, अल्लाह ताला इनके भी उम्र में बेपनाह बरकत फरमाए। और इसी के साथ में सुन्नी के तमाम कारकुनान की जिंदगी में आपको मौला खुशियां अता फरमाए, बेपनाह उम्र में बरकत अता फरमाए। इस आशुरा के दिन के तवस्सुल से सदके से हम दुआ करते हैं, हमें हमेशा रोज अबू तरक्की अता फरमाए। और जितने भी मौजूद सामीन और नाज़रीन अभी इस वक्त सुन रहे होते हैं, अल्लाह ताला तमाम की तमाम हाज़रीन, तमाम की तमाम सामीन के एक जैसे तमन्नाओं को और इस मुक़द्दस मुहर्रम के सदके में इस जिक्र शहादत इमाम हुसैन के तवस्सुल से और बिलखुसूस आशुरा के ताल्लुक से हम और आप खूब सुन चुके होते हैं, खूब पढ़ चुके होते हैं और बारहा सुन चुके होते हैं। तब हमें मालूम है अमल की जरूरत है हमारी। तमाम ही हजरात को मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे इसके ऊपर अमल करने की मौला अल्लाह ताला हमेशा हमें सुन्नी आतंकवाद हमेशा तरक्की अता फरमाए, जालिमों के जुल्म से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए और जाबिरों के जबर से बचाए। हमेशा हमें मालिक मौला अपने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।